So last time we sum up with the some concluding marks, like Prakrit is a very natural and people's language. It's not a product of elite scholarship, but of common users, and it is the root of many Indian languages and the soul of Indian spirituality. And its literary richness, its literary beauty, especially in poetry and Jain agamas, and it was the chosen medium of Bhagwan Mahavir and Gautam Buddha, who changed the religious history of India. And even today, understanding Prakrit offers a window into ancient India's moral, spiritual, and cultural life. So this is what we learned in previous class. Okay. So today we will discuss about the three Indo-Aryan, Middle Indo-Aryan languages: Magdi Prakrit, Ardh Magdi Prakrit, and Shaur Seni Prakrit. And these languages played a pivotal role in ancient Indian literature, Indian drama, and religious texts, especially Jain canonical literature. So we will discuss about these three major dialects of Prakrit language. लास्ट टाइम हमने ये मागधी, अर्ध मागधी, शौर सेनी, महाराष्ट्रियन, पैशाची, इस पे हम लोगों ने जस्ट एक इंट्रो लिया था. Magdi is linked to the ancient kingdom of Magad and playing a crucial role in the linguistic transition to modern languages like Hindi and Bengali. Ardh Magdi Prakrit holds historical significance as the primary language of Jain scriptures, and its distinct linguistic features distinguish it from other Prakrit dialects. Shaur Seni Prakrit, primarily spoken in northern India, particularly around Mathura, Shaur Seni stands out with its unique grammatical structures and features. Maharashtri Prakrit, जो आपको अलग से मैम ने भी पढ़ाया होगा, ये renowned for its use in classical Sanskrit drama. Maharashtri Prakrit, notably employed by playwright Kalidas, holds a special place in Indian literature. And Paishachi Prakrit, Paishachi is noteworthy. It is said to be the language of the original Brihad Katha of Gaud or Gunadhya. So these are some points. अच्छा, आप लोगों को ये लैंग्वेज इंग्लिश चलेगा, हिंदी चलेगा, बाइलिंगुअल चलेगा? जो नए लोग आए हैं उनके लिए पूछ रहा हूँ मैं. यस सर, बाइलिंगुअल. हाँ, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, यस चलेगा, दोनों चलेगा. दोनों चलेगा, ठीक है. आज वो सर नहीं जुड़े, एक क्या नाम है उनका, सिंह राजा उनका मतलब लिख के आता है, वो आज नहीं है क्या? भावेश जी? Yeah, I'm looking at the participant. I think he's not logged in yet now. Okay. Okay. So let me discuss about Magdi Prakrit. So Magdi Prakrit, what is Magdi Prakrit? Magdi Prakrit was the popular spoken dialect of the Magad region, and which largely corresponded to present day Bihar and its neighboring areas in eastern India. ये जो हम जो मगध क्षेत्र की बात करते हैं, हम मगध के आसपास, जो मगध एक प्राचीन हमारा क्षेत्र रहा है, जिसमें आज का बिहार हम देखते हैं, आसपास के और उसके आसपास के जो क्षेत्र है, आसपास का जगह है, तो वहाँ की जो एक हम बोलते हैं लोक भाषा बोलते हैं,
है ना। तो लोक बोली जो भाषा, देखिए भाषा, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, कि बोली क्या होती है जिसको हम ग्रामेटिकली जो सिस्टमाइज्ड नहीं है उसको हम बोली बोलते हैं, और जो ग्रामर में बाउंड हो चुकी है उसको हम भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो मागधी प्राकृत जो मगध क्षेत्र की थी इसलिए उसका नाम मागधी पड़ा। तो ये हम देखेंगे कि अगर अब एक एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे तो जो हमारी नाट्य प्राकृत है ना, प्राकृत जो नाटक लिखे गए हैं, चाहे अश्वघोष द्वारा चाहे वो कालिदास के द्वारा, है ना, तो उनमें ये नाट्य प्राकृत भाषाओं का एक अंग इसको माना जाता है, एक पार्ट माना जाता है, और जिसे हम कह सकते हैं कि शौरसेनी और महाराष्ट्री के साथ इसको मिडिल इंडियन आर्यन लैंग्वेज के रूप में इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जहाँ अगर हम संस्कृत की बात करें तो जहाँ संस्कृत एक बहुत ही एलीट भाषा मानी जाती थी, एक विद्वानों की भाषा मानी जाती थी, धार्मिक ग्रंथों की भाषा मानी जाती थी, वही मागधी प्राकृत जो है वो आम लोगों के संवाद, आम लोगों के डायलॉग की भाषा, और जो एक कल्चरल जो एक हम लोग का एक आदान प्रदान होता है ना। मागधी प्राकृत क्या है, इट्स कॉमन पीपल लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल एंड फैसिलिटेटिंग डेली कम्युनिकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। सो ये एक यहाँ पे मागधी प्राकृत की एक शुरुआती अगर हम बात करें तो ये एक शुरुआत इसका इंट्रोडक्शन है। एंड unlike some other Prakrit language, Magadhi does not have an independent body of literature, but is found in Sanskrit dramas and inscriptions. अगर हम बात करें मागधी प्राकृत की तो एक पर्टिकुलर इसमें कोई इंडिपेंडेंट, जैसे अर्ध मागधी के हमें टेक्स्ट प्राप्त होते हैं, ग्रंथ प्राप्त होते हैं, शौरसेनी के भी ग्रंथ प्राप्त होते हैं, पाली के भी मिलते हैं। तो इस तरीके से मागधी का कोई इंडिपेंडेंट कोई टेक्स्ट अभी तक नहीं मिला है, कोई लिटरेचर इस तरीके का नहीं है। बट ये संस्कृत ड्रामाज में जो होता है जो संस्कृत, जैसे मैंने बताया कालिदास और अश्वघोष, इन सब के नाटकों में मागधी प्राकृत का प्रयोग मिलता है। सो वी कैन से दैट मागधी डज नॉट possess an independent extensive literary legacy of its own. Instead, its traces are found in Sanskrit dramas, where characters representing common folk or certain regions spoke in Magadhi Prakrit to convey realism. पहले क्या होता था नाटकों में, नाटक जब प्लेज लिखते थे लोग, जो हमारे नाटक का, तो वो ओरिजिनल डायलेक्ट्स, जैसे जो आज के नाटक जैसे होते हैं, आज के प्लेज होते हैं, तो हिंदी है तो हिंदी में ही हो रहा है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही हो रहा है, गुजराती है तो गुजराती में ही पूरा प्ले हो रहा है ना, तो बंगाली है तो बंगाली में ही पूरा प्ले हो रहा है। लेकिन उस टाइम ऐसा होता था कि बहुत रियलिस्टिक ड्रामा होते थे, कि जो क्लास संस्कृत बोलती थी उनसे हम उनके डायलॉग्स जो होते थे वो संस्कृत में होते थे। लेकिन जो क्लास जैसे हम कहते हैं कि जब प्राकृत ये संस्कृत ड्रामास की बात आती है तो हम कहते हैं कि जो महिला पात्र होती थी या बच्चे होते थे या राजा और ऋषियों के अलावा जितने रोल या पात्र होते थे वो सब क्या कहते थे, वो प्राकृत बोलते थे। तो वो अपने नेचुरल लैंग्वेज में बात करते थे, और जहाँ हम ऋषियों की भाषा की बात करें या राजा बात कर रहे हैं वहाँ संस्कृत। इवन हम अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बात करें जो महाकवि कालिदास के द्वारा है, तो वो भी नाटक जो है अगर हम कहें तो वो 60% संस्कृत, लगभग 50-50 है, 50% संस्कृत है, 50% प्राकृत है उसमें डायलॉग्स में। तो उसमें इवन जो गीत भी गाए गए हैं, जो शकुंतला और उसके जो फ्रेंड्स थे, अनुसुईया, ये जो थे, तो इनके द्वारा जो उसमें गीत भी गाए गए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, वो भी प्राकृत लैंग्वेज में ही है। आप लोग कभी उसको पढ़िएगा, हम लोग ने वो प्ले भी किए हैं, हम लोग ने बचपन में काफ़ी सारे।
तो इसलिए हम लोग को उसमें और ज़्यादा वो रहता है। तो इस तरह सो द डायलेक्ट ऑल्सो अपीयर्स इन एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो। ये जो मागधी है हमारे प्लेज में तो वहाँ पे उसका प्रयोग हुआ है, बट हमारे जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस है, जो शिलालेख है, हाँ मोस्टली हम कहेंगे कि जो अशोक के शिलालेख है उसमें इस मागधी भाषा का प्रयोग हुआ है। एंड जिसमें जिसमें क्या जो उस एडिक्ट्स में क्या है, उन शिलालेखों में, इंस्क्रिप्शंस में क्या है, ऑफिशियल जो बातें होती है, जो प्रशासनिक बातें होती हैं राज्य के, कि ये इस चीज की बात बोली गई है, ये बता, तो ये एक तरीके से ये भी बताता है कि सम्राट अशोक के समय में प्राकृत लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रतिष्ठित थी। तो ये एक यहाँ पे बात आती है प्राकृत, मागधी प्राकृत को लेकर। And it was likely not a single phrase language but a mixture of several dialects because it had contact with many other Indian dialects. So Magdi Prakrit was not a rigid or uniform language, and it evolved as a mixture of multiple dialects due to the diverse linguistic landscape. Diverse linguistic landscape of Magadh and neighboring areas. So the intermingling of dialects made Magadhi flexible and capable of absorbing linguistic influences from other Indian languages, and which is why it's considered a linguistic blend more than a fixed entity. प्राकृत जो मागधी प्राकृत की हम बात करते हैं, हम उसको बहुत ही रिजिड नहीं है, वो बहुत अनेक कई सारी बोलियों का एक मिक्सचर है, मिक्सचर के रूप में उसको डेवलप हुई है। और मगध और आसपास के क्षेत्रों की जो भाषा थी, वातावरण, तो उसकी इसलिए उसकी कई सारे इस तरीके के बहुत सारे मिक्सचर हो गया उसके बोलियों में, और बोलियों के जो अलग अलग संपर्क आपस में मिले इस तरीके के, तो भारतीय भाषाओं के प्रभाव को एक तरीके से उसको करने में, उसको एक्सेप्ट करने में, तो उसको शख्स एक तरीके से बहुत केपेबल बनाया। एक सेकंड, मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ है कोई, वही है, हाँ ओके। हेलो Hello, Sergi. हेलो, हाउ आर यू? तो ठीक है, और आप? हम बढ़िया हैं। ठीक है, आपका हम मिस कर रहे थे, अभी हम जस्ट बात कर रहे थे आपकी कि आप इसमें अभी नहीं जुड़े हैं, बट अच्छा हुआ कि आप जुड़ गए। सो we were discuss about Magadhi Prakrit. Today we are discussing about the introduction to Prakrit dialects like Magadhi Prakrit, Ardha Magadhi Prakrit, and Saur Seni Prakrit. So we are discussing about the Magadhi Prakrit. So these are the major things about Magadhi Prakrit. And now the historical significance, historical and cultural significance of Magadhi Prakrit. Magadhi Prakrit was the language spoken by important religious figures like Gautam Buddha and Bhagwan Mahavir. So the historical importance of Magadhi Prakrit lies in its association with the religious legends like Gautam Buddha and Bhagwan Mahavir, and who are believed to have taught and preached in this language. And this made Magadhi a sacred medium for both Buddhism and Jainism in ancient India. And it was also the language of royal courts of Magadha and the Mauryan Empire, helping establish its rule in governance and administration. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक मगध राज्य, मौर्य साम्राज्य जब था, मौर्यन, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन या
हम कह सकते हैं जो गवर्नेंस, इस भाषा में ये सब प्रयोग होते थे, मागधी भाषा का प्रयोग किया जाता था। और जैसा मैंने बताया कि अशोक के शिलालेखों में, अभिलेखों में मागधी प्राकृत का प्रयोग जो मिलता है वो बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस के लिए, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन टू द मासेस, so making it a symbolic symbol of historical prestige and communicative power. तो इस तरह ये मागधी प्राकृत जो है वो एक डायलॉग का, एक संवाद का, एक बहुत इस तरीके से इसकी पहचान बनी जब इसके बारे में। तो some edicts of Emperor Ashok were inscribed in this Prakrit, showing its historical prestige. Okay, so this is the historical and cultural significance of मागधी प्राकृत। हमको मागधी प्राकृत के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, बिकॉज जब भी हम भाषा की बात करते हैं तो हम उसको टेक्स्ट के थ्रू बात करते हैं मोस्टली, तो हमको बहुत कुछ इससे उसकी चीजों का पता चलता है। बट जैसा कि मैंने बताया कि मागधी प्राकृत में इंडिविजुअल इसका, या हम कहेंगे कोई इस तरीके का टेक्स्ट नहीं मिलता है, ये ड्रामा में ही इसका मोस्टली प्रयोग होता है या फिर शिलालेखों में इसका प्रयोग किया गया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्ड जो बात होती है वो हमें पता उतनी नहीं चल पाती है, फिर भी जितना हमें पता चला तो उस हिसाब से यहाँ पे बात कर रहे हैं। So linguistic features, तो मागधी प्राकृत evolved through interactions with various vernaculars in India. Magadhi Prakrit developed through continuous interaction and contact with various local vernaculars around the Magad regions, and this process contributed to its emergence as a base dialect from which other Prakrits and even modern Eastern Indo-Aryan languages later originated. प्राकृत भाषा का विकास जो हुआ है वो मगध जो क्षेत्र था उसके चारों ओर की जो भी रीजनल लैंग्वेजेस थी उससे निरंतर कंटिन्यूसली उसके साथ डायलॉग, उसके साथ इंटरेक्शन से हुआ है। और यही जो प्रोसेस चला है, यही जो प्रोसेस है, इसे एक बेस मिला, उसको मिला और उसका डेवलपमेंट हुआ, और जिसके बाद जो और भी जो अन्य प्राकृतें जो आती हैं और जो एक हम बोलेंगे जो मॉडर्न ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज जो होती है वो भी इससे एक तरीके से डेवलप्ड हुई। सो द लैंग्वेज पाली, अगर हम पाली की बात करें, लास्ट टाइम भी हमने पाली की बात की थी। सो द लैंग्वेज पाली एंड अर्धमागधी एंड पाली owe their development to Prakrit language, Magadhi Prakrit, and the dialect influenced the formation of prominent Buddhist and Jain texts respectively. अगर हम पाली और अर्धमागधी भाषाओं का विकास जो हुआ है, it would be nice if like you could use English. Yeah. Sorry. Oh, it would be nice if you could use more English searching. Yeah. Okay, I'm using English. Hello. Thank you, Sergi. Yeah, Apan. Because I asked everyone, so they are comfortable in English or Hindi or both. So they said that they are comfortable in both language. Some are comfortable. Yeah, but in maybe Hindi. with more portion of English. Yeah, but since the Hindi is not my mother tongue. Okay, sure. So I'm describing in English and also in Hindi, because some people are comfortable in Hindi or English, that's why. So that's why I'm describing in English as well as in Hindi. That would be nice. Thank you, Sergi. Okay.
Okay. So, कहाँ थे हम लोग? Okay. So, grammarians of ancient India have documented its spatial features. The language, the Magधी shares certain phonological and morphological traits with Shaur-Sini Prakrit. Another major dramatic Prakrit of ancient India, and this similarity is noted by linguistics and is often used to study the evolution and classification of Indian languages. जो मागधी प्राकृत की बात कर रहे हैं हम, मागधी प्राकृत में जो शौर सेनी प्राकृत के भी अभी आगे बात आएगी हमारी, उसको भी हम बात करेंगे उसके बारे में. तो मागधी प्राकृत एंड शौर सेनी प्राकृत, ये इसमें जो मॉर्फोलॉजिकल एंड फोनोलॉजिकल ये जो ट्रेड्स हैं, है ना, तो इस ये दोनों इसमें एक जैसे मिलते हैं. तो ये जो इसकी सिमिलैरिटी है, तो वो जो लिंग्विस्टिक्स हैं, वो भारतीय भाषाओं के जो उसका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसके क्लासिफिकेशन के स्टडी के लिए बहुत यूजफुल, उसका प्रयोग बहुत होता है, उसको यूज में बहुत लिया जाता है. तो इस तरह से ये एक लिंग्विस्टिक फीचर्स हमारे प्राकृत मागधी प्राकृत के यहाँ पे बताए गए. Now, linguistic variations and related dialects. Scholars accept that popular or folk dialects such as Shakari, Chandali, and Shabari are derived from Magधी Prakrit. Scholars observe that folk dialects, including Shakari, Chandali, and Shabari, are derived from Magधी Prakrit and represent its vernacular spread. So these dialects showcase Magdhi's capacity to adapt and diversify within linguistic umbrella of Eastern India. है ना, ये जो शाकारी, चांडाली और शाबरी जैसे जो अलग जो डायलेक्ट्स हैं, जो लोक भाषाएं जिसको मानते हैं, तो मागधी प्राकृत से निकली हुई बोलियां मानी जाती है. अगर हम इन तीनों को बोलें तो ये मागधी प्राकृत से ही डेवलप्ड है, वहीं से निकली हुई है, जो इसकी एक पॉपुलैरिटी को बताता है, जो इसकी कैपेसिटी को, इसकी डाइवर्सिफाई को बताता है. एंड these local dialects reflect the diversity and reach of Magधी as a linguistic umbrella. These local and popular tongues not only reflects Magdhi's reach and cultural diversity, but also shed light on how the language transitioned into various modern vernaculars like Magahi, Bengali, Assamese, and Odia. So thus Magdhi Prakrit stands as a foundation stone for the linguistic landscape of much of Eastern India today. जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मागधी प्राकृत के एक डाइवर्सिटी को बताती है ना. जैसे हम कहते हैं बिहार या हम झारखंड, बिहार साइड में देखें तो वहाँ पे देखते हैं क्या कि एक मैथिली लैंग्वेज चलती है, रीजनल लैंग्वेज. मगही चलती है. जो मगही है वो एक तरीके से मागधी का ही वो रूप है, मगही है. और भी उसमें अगर हम और भी आगे बढ़े तो बांग्ला, सामिया, उड़िया, तो इन भाषाओं में एक तरीके से वो जाके चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मागधी प्राकृत पूर्वी भारत, ईस्टर्न भारत की भाषाई एक तरीके से उसको लिंग्विस्टिक लैंडस्केप के लिए एक बहुत ही बेस है ये भाषा, मागधी भाषा, मागधी प्राकृत. तो इस तरह लिंग्विस्टिक वेरिएशंस ऑफ रिलेटेड डायलेक्ट, वेरिएशंस एंड रिलेटेड डायलेक्ट्स के बारे में भी हमने जाना. नाउ there are two forms of Magधी Prakrit.
There are two forms of Magadhi Prakrit. Wait. The first is Magadhi. The first is Magadhi foundation found in the inscriptions of Emperor Ashok and the play of the great poet Ashwaghosh. जो दो प्रकार का माना जाता है Magadhi Prakrit. पहला वो है जो क्या कहते हैं, जो जैसे मैंने बताया कि जो अशोक के शिलालेखों में जो मिलती है प्राकृत, और जो ड्रामा जो अश्वघोष के जो प्लेज हैं उसमें जो प्राकृत का प्रयोग किया जाता है वो मागधी प्राकृत है. Second level, the second is medieval Magadhi used in the plays of Bhasa. जो भास हुए हैं जिनके भास के भी बहुत सारे नाटक मिलते हैं, and his later works, and by Prakrit grammarians. These three languages, Shakari, Chandali, and Shabari, are also considered part of Magadhi. ये शाकारी, चंडाली और शाबरी ये भी मागधी के ही एक तरीके से पार्ट के रूप में इसको पार्ट माना गया है. ठीक है, तो ये दो यहाँ पे फॉर्म मिलते हैं प्राकृत के, मागधी प्राकृत के. नाउ सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मागधी प्राकृत. अभी यहाँ पर क्योंकि ये ग्रामर से रिलेट कर रहा है इसलिए इसको यहाँ पे मैंने हिंदी में प्रेजेंट किया है. तो क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आप लोग उससे बहुत सारा कनेक्ट कर पाएंगे ऑलरेडी. तो कुछ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अलग, जो अन्य दूसरी प्राकृत से इसको अलग करते हैं वो ये है कि फर्स्ट में आता है आकारांत पुल्लिंग. जब हम ग्रामर पे अब चलते हैं धीरे धीरे, तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों के जो प्रथमा एक वचन में ओ की जगह एकारांत का प्रयोग होता है. आप लोग ने ये पढ़े हैं, रूप पढ़े, ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आप लोग ने रूप भी पढ़ रहे होंगे. जी सर, यस पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं. तो आप लोग को ये ध्यान में आ रहा है ना, मतलब नया तो नहीं आपके लिए, जो बता रहा हूँ वो नया तो नहीं है. Is it new for you? Anyone? यहाँ पे जस्ट हम इंट्रोडक्शन टू 3 डायलेक्ट्स कर रहे हैं. तो यहाँ पे जस्ट मैं एक उसके इंट्रोडक्शन के रूप में कि कहाँ किस चीज का प्रयोग होता है, कि इसके मतलब एक लिंग्विस्टिक, एक ग्रामेटिकल पार्ट को भी यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि जो इस भाषा को अलग बनाता है, माने चाहे शॉर्ट सिनी से, अर्धमागधी से अलग बनाता है, वो चीज यहाँ पे ग्रामेटिकली क्या चेंज है आपस में म्यूचुअली, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ. तो हम ये कहेंगे कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वो भी दिए हैं, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. जैसे हम बोलते हैं एषः पुरुषः, तो वहां पे मागधी प्राकृत में एषे पुलिशे इस प्रकार का प्रयोग मिलता है. एषे पुलिशे आकारांत पुल्लिंग शब्दों के प्रथमा एक वचन में ओ की जगह एकारांत का प्रयोग होता है. ठीक है. फिर सेकंड है क्या कि र के स्थान पर ल, जैसे राजा. ठीक है. तो र के स्थान पे ल करेंगे तो क्या होंगे, ला आ. नरह की जगह हो जाएगा र की जगह ल हो जाएगा और विसर्ग का ए हो जाता है, तो नले. ठीक है. फिर तीसरा आता है स और श के स्थान पर मात्र तालव्य श का प्रयोग होता है ना. लेकिन स और श किसी संयुक्त वर्ण, यानी एक साथ जब चीजें होती है, वो उसका मैंने उदाहरण भी दिया है जिससे आपको तुरंत आपको ध्यान में भी आ जाए. तो संयुक्त वर्ण के साथ होता है तो सामान्य प्राकृत की तरह दंत्य सकार का ही प्रयोग किया जाता है ना. जैसे दंत क्या होता है, दंत सकार जो हम स बोलते हैं, ये दिस इज दंत सकार. ठीक है. ये तालव्य श होता है. ठीक है. तो ये तालव्य श कहता है, ये दंत कहलाता है. इसको थोड़ा आपको टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी जाननी पड़ेगी क्योंकि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं और वो भी संस्कृत, प्राकृत, ये सब ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है वो थोड़ी सी आपको यहाँ पे जाननी पड़ेगी.
कि क्या होता है, तो और अच्छे से और जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, संयुक्त वर्ण के साथ हो तो सामान्य प्राकृत की तरह दंत सकार का, जैसे निष्फलम, तो वहां पे क्या हो गया, निष्फलम। कष्टम तो कष्टम। बृहस्पति तो गुहपदी। और जैसे जानाति तो इसकी जगह हो जाएगा याणदि। ठीक है, तो इस तरीके के प्रयोग इसमें मिलते हैं। मागधी ज के स्थान पर य का प्रयोग किया जाता है। न्य ण्य ज्ञ ज्ञ के स्थान पर सामान्य, जैसे सामान्य अगर बोलना तो है सामान्य को शामज्ञ। प्रज्ञा, प्रज्ञा को पण्यो। अनादि, अनादि छ के स्थान पर क्या होगा, च, जैसे गच्छ तो यहाँ पे हो गया गश्च। पृच्छति तो पुंचदि। अहम के स्थान पर, अहम जो बोलते हैं संस्कृत में, उसके स्थान पर क्या होता है, हके, हगे और अहके, ये तीन आदेश यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, एंड हृदय के स्थान पर, जो हम हृदय की बात, जब हृदय शब्द आता है तो उसके स्थान पर यूज होता है मागधी प्राकृत में हडक। जैसे हम बोले मम हृदय, तो क्या बोलेंगे, मम हडक्के। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इसकी मागधी की जो कुछ विशेषताएं हैं, वो यहाँ पे सामान्य विशेषताएं, वो यहाँ पे मैंने यहाँ के प्रेजेंट किया कि ये इस तरीके के जब शब्द आपको कहीं देखने में आए, पढ़ने में आए, है ना, तो इससे आप ये लगा सकते हैं हाँ कि ये मागधी से कई सारी, अब हम कह देते हैं कि प्राकृत है, ये प्राकृत, ये प्राकृत। तो आप जब चार प्राकृत आपके सामने रख दो तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी प्राकृत है। तो वो इस तरीके के जो हम जो जनरल कैरेक्टरिस्ट अगर हमारे हमको थोड़ा पता है तो हम उस चीज का उस चीज को क्लासिफाइड कर सकते हैं कि दिस इज मागधी, दिस इज शॉर्टसेनी एंड दिस इज अर्धमागधी। ओके, नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ मागधी गाथा। हम गाथा पढ़ते हैं, वर्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस हालांकि बहुत ज्यादा नहीं मिलता है मागधी में, तो एक मिला है जो कुमार चरित, वहाँ कुमारपाल चरित में मिलता है, तो वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ कि पुजे निषाद पंज सुचले यदि पधेण वजन्ते शयलय वच्छल तम गच्छन्ते लहति पलम पदम। यानी यहाँ पे इसका अर्थ कह रहे हैं कि पुण्यात्मा, कुशाग्र प्रज्ञा वाला, सुपांजल यति मार्ग का अनुसरण करता हुआ, सकल जग की वत्सलता का आचरण करता हुआ परम पद को प्राप्त करता है। तो आपने अभी ये जो प्रयोग हम लोग ने यहाँ पे बताया है वो भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो इस तरह यहाँ पे इस तरीके के प्रयोग मिलते हैं। तो एक एग्जाम्पल के रूप में, वहां पर तो शब्द के रूप में बताए कि ऐसा ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक गाथा अगर हम बोलें तो उसके रूप में भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमें मागधी प्राकृत का मिलता है। ठीक है, ओके, सो दीज आर सम introduction about Magdi Prakrit. Now we will discuss about Ardha Magdi Prakrit. So Ardha Magdi Prakrit, you are already aware about it, and the Jain Agamas, which are earliest canonical scriptures of Jainism, record a rich linguistic diversity in Bhagwan Mahavir's time, and 18 at that time 18 main dialects and around 700 sub-dialects were in use, and reflecting the wide range of regional linguistic expression across ancient India. So this multilingual environment provided the background for the evolution of Ardha Magdis as the unifying medium of communication. ना, जैसे अभी आपने देखा कि जैन आगमों में ये प्रयोग किया जाता है। हमारे जितने जैन आगम हैं, श्वेतांबर जैन आगम जितने हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में है, अर्ध मागधी। भगवान महावीर ने भी जो अर्ध मागधी भाषा में ही उपदेश दिए, और
जो आगम, कोई 45 आगम्स मानता है, कोई 32 आगम्स मानते हैं, तो ये सभी के सभी जो है अर्धमागधी प्राकृत में माने जाते हैं. एंड द स्क्रिप्चर्स recognize Ardhamagdis as a comprehensive and refined language born from the interaction of various regional tongues. Okay. So Ardhamagdi is described in the Agamas as the principal language emerging from these 18 regional languages encompassing all dialects. So it served as a standardized form that retained local flavor yet achieved wider intelligibility, allowing Bhagwan Mahavir's teaching to reach diverse communities. है ना? क्यों भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा को क्यों चुना? वो अन्य भाषा, दूसरी भाषा भी चुन सकते थे, प्राकृत को ही क्यों चुना उन्होंने? क्यों? क्योंकि ये कॉमनर लैंग्वेज थी और वो चाहते थे कि वो जो भी उपदेश दे रहे हैं वो जन सामान्य तक पहुंचे. हर एक व्यक्ति विदाउट एनी कास्ट, क्रीड एंड और वो सब तक पहुंचे जिससे सब लोग आत्म कल्याण कर सके. ओके. Also called Arsha Prakrit. Ardhamagdi Prakrit, also called Arsha Prakrit, and Ardhamagdi is regarded as the language of Mahavir's teaching. The term Arsh, what does it mean? Arsh का क्या मीनिंग है? कोई बताएगा? आर्ष प्राकृत बोल देते हैं, आर्ष प्राकृत. Anyone know? Does it mean sky? हाँ? Akash, sky? नहीं. No. It's not आकाश. आर्ष मीन जैसे हम बोलते हैं ना, ये आर्ष प्राकृत. अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत भी बोला जाता है ना? तो आर्ष मतलब ऋषियों की भाषा. ओके. आर्ष मतलब ऋषियों की भाषा. So the term Arsh means of the rishis or sages. So Ardhamagdi thus is not merely a regional dialect but a sacred language used by the enlightened teachers who express spiritual truths. And it became the linguistic vessel through which Bhagwan Mahavira's ethical, Bhagwan Mahavira's philosophical and metaphysical ideas were communicated. Okay. So, and another point is the Jain Shwetambar traditions, Agamas, scriptures are preserved in Ardhamagdi, showing its religious importance. I already told that all canonical texts of the Shwetambar Jain tradition are written in Ardhamagdi, and this gives the language and the sacred status comparable to Sanskrit in Vedic tradition or Pali in Buddhist literature. And its presentation reflects both linguistic continuity and spiritual reverence. जैसे हम बात करते हैं, जैसे वैदिक परंपरा में हम कहेंगे कि संस्कृत भाषा का सर्वोपरि स्थान है, बौद्ध ट्रेडिशन में हम कहते हैं कि पाली का सर्वोच्च स्थान है, वैसे ही जैन परंपरा में भी अर्धमागधी का वही स्थान. तो ये अर्धमागधी और भगवान महावीर की वाणी भी बोली जाती है. तो इस तरह अर्धमागधी, दिस इज द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ अर्धमागधी प्राकृत. So there is some linguistic features also of Ardhamagdi Prakrit. So Ardhamagdi was spoken across half of the ancient Arya region. The language, the Ardhamagdi language had wide geographical reach, extending over the central and eastern parts of the Indo-Aryan cultural zone, and its spread indicates that it was not confined to one locality,
but functioned as a common speech among monastic and lay community. That's why Bhagwan Mahavir chooses this language, Ardha-Magdi language. And it shares certain features of Magdi Prakrit, leading some scholars to identify it as Ardha-Magdi. Because Ardha-Magdi evolved in proximity to Magdi, and it shares phonetic and grammatical similarities with it. So certain sounds, words, word endings, and sentence structure overlap, suggesting a linguistic kinship. ये जो हम बात करते हैं अर्धमागधी में मागधी प्राकृत की बहुत सारी विशेषताएं एक जैसी मिलती हैं, तो कुछ जो स्कॉलर्स हैं, लिंग्विस्टिक्स हैं, वो कहते हैं कि ये जो सिमिलैरिटीज है इस कारण से अर्धमागधी को मागधी की एक ब्रांच भी कहा जाता है, उस रूप में भी माना जाता है ना। तो अर्धमागधी, जैसे मागधी की बात हमने की, अर्धमागधी क्या है, उसमें उसमें बहुत सारे डायलेक्ट्स मिक्सचर है उसमें, ठीक है, मागधी भी है और भी अन्य प्राकृतें इसमें मिक्स्ड हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अर्धमागधी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मार्कंडेय, ड्यू टू इट्स closeness to Shaurseni Prakrit is also sometimes considered Ardhamagdi. Scholar like Markandeya observed that linguistic boundary between Shaurseni and Ardhamagdi was fluid, and some features of Shaurseni, especially in vocabulary and syntax, resemble Ardhamagdi, showing cross-regional linguistic influence. जो मार्कंडेय हुए हैं, जिनका प्राकृत प्रकाश ग्रंथ है, उन्होंने कहा कि शौरसेनी प्राकृत और अर्धमागधी के बीच एक बोलेंगे लिमिटेशंस होती है, एक लिंग्विस्टिक लिमिटेशन है, बहुत एग्जैक्टली वो स्पष्ट नहीं है, और दोनों में जो वाक्य रचना अगर बोले या शब्दावली बोले, उनमें हम कुछ समानताएं देखते हैं, तो जिससे ये हम माना जाता है कि दोनों भाषाएं एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड हैं, एक दूसरे से प्रभावित हैं। तो ये एक उनका व्यू है मार्कंडेय का। एंड दीज फैक्ट्स इंडिकेट दैट अर्धमागधी वाज लाइकली अ ट्रांजिशनल लैंग्वेज स्पोकन बिटवीन द regions of Shaurseni and Magdi. So Ardhamagdi's position between the western Shaurseni zone and the eastern Magdi areas makes it a linguistic bridge. अगर हम मगध की बात करें, मगध और शौरसेनी, जो शौरसेनी भाषा कहाँ की, उसके बारे में अभी बात आएगी अपनी। तो जो मथुरा के आसपास जो शूरसेन प्रदेश है, ठीक है, तो वो वेस्टर्न उस साइड आ गया और ईस्टर्न ये मगध क्षेत्र आ गया। सो ये जो इसके बीच एक ब्रिज, लिंग्विस्टिक ब्रिज के रूप में वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया गया है। सो इट रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशनल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। तो ये दोनों जो हैं, एक तरीके से हम बात करें तो शौरसेनी और मागधी के बीच में के क्षेत्र हैं, उसके बीच के जितने भी एरियाज हैं, तो इसने दोनों भाषाओं के रूप को मिलाकर एक उसको मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज का उसको स्वरूप दिया, उसको या स्वरूप उसको प्रदान किया। तो इस तरह ये अर्धमागधी और ये दो रीजन की बात आई। And its structural composition shows significant influence from both Magdi and Shaurseni Prakrits. So Ardhamagdi borrows grammar, phonetic and morphology from both parent Prakrits, and it blends the softness and vowel-based sound system of Magdi with the structural balance of Shaurseni. So it making it a linguistic rich medium. क्या इसमें किस तरीके की बात आई, यहाँ पे कहा गया कि जो अर्धमागधी की जो अर्धमागधी की जो एक स्ट्रक्चर है, वो मागधी और शौरसेनी दोनों प्राकृतों का इसमें बहुत गहरा इन्फ्लुएंस दिखता है। तो इससे मागधी में क्या है, फोनेटिक जो बताया ना, एक इसमें वो है, और शौरसेनी की जो एक
संरचना जो होती है शौर सेनी जिस तरीके से प्रयोग की जाती है इसके, तो दोनों का एक तरीके से कंपाइलेशन है इसमें। तो इस तरह से ये अर्धमागधी की जो एक लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं वो यहाँ पे इस प्रकार से है। नाउ linguistic variations and related dialects. So Ardhamagdi functioned as a intermediate linguistic form connecting the Eastern Magdi and Central Shorseni dialect zones. Ardhamagdi acted as a linguistic mediator actually, and linking speakers from Eastern and Central regions. So this bridging role helped in the transmission of religious and philosophical knowledge across a vast territory. क्या ये दोनों अर्धमागधी ने एक तरीके से जो ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन के जो एरियाज थे उसको जोड़ने का काम किया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये दोनों एरियाज में जो रिलीजियस या हम कह सकते हैं जो फिलोसफिकल जो एक एक्सचेंज होता है उसमें एक ब्रिज का इस भाषा ने एक ब्रिज का काम किया। ओके, सो द इंटरैक्शन बिटवीन दीज लैंग्वेजेस कंट्रीब्यूटेड टू द अर्धमागधी's यूनिक लिंग्विस्टिक प्रोफाइल combining morphological and phonological traits from both sources. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मागधी और शौरसेनी भाषाओं का जो म्यूचुअल जो इन्फ्लुएंस है उसके म्यूचुअल इन्फ्लुएंस से अर्धमागधी का एक अलग एक स्वरूप निकल के आया एंड इट एसिमिलेटेड वर्ड फॉर्म्स, sentence constructions and sound patterns from both, resulting in a balanced and accessible linguistic systems. So these are some. So Ardhamagdi Prakrit stands as a linguistic and cultural bridge in ancient India, and it not only preserved Bhagwan Mahavira's words, but also united diverse dialect communities under a shared spiritual and linguistic heritage. So this is about linguistic variation and related dialects. Now, some features of Ardhamagdi. अब जैसे हमने यहाँ पे बात की थी मागधी की, अब यहाँ पे उसी तरीके से ग्रामेटिकली यहाँ पे किस तरीके से कौन से शब्द पे क्या होता है वो थोड़ी यहाँ बात कर लेते हैं। तो अब इसमें जब हम अर्धमागधी की बात करते हैं तो इसमें क के स्थान पर ग का प्रयोग ग का प्रयोग मिलता है, लेकिन कहीं जो हलंत त और य भी मिलते हैं साथ में। जैसे कहीं कहीं ग का होता है, लेकिन कहीं कहीं हम देखेंगे तो ये जो नीचे है ना त के नीचे हलंत कहलाता है, ठीक है। तो त और य इस तरीके का भी मिलता है। प की व और य श्रुति भी देखी जाती है। प्रथमा एक वचन में ए तथा ओ पाए जाते हैं, लेकिन जो हम गद्य में अगर बात करें तो ए तथा पद्य में जब हम उसको जब वो काव्यात्मक रूप में अगर कहीं गाथा लिखी हो पद्य रूप में तो वहां पे ओ का प्रयोग ज्यादातर मिलता है। धातुओं की बात करें, धातु रूपों के भूतकाल में वो इंसु प्रत्यय लगता है और कृदंत में एक ही धातु के अनेक रूप देखे जाते हैं। जैसे हम कहेंगे कृत्वा के लिए कटु, किच्चा, कारिता, करिताड़म, ये सब कुछ अलग अलग इसके रूप देखने को मिलते हैं। और उसी तरीके से अर्धमागधी में ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि न के स्थान पर ण और न दोनों मिलते हैं। ओके, न के स्थान पर अर्ध, जैसे हम शौरसेनी की बात करेंगे तो वहां पे न के स्थान पर ण ही होता है शौरसेनी प्राकृत, लेकिन अर्धमागधी में
न के स्थान पर न और न दोनों ही प्राप्त हमको होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इसके एक सेकेंड, कुछ फीचर्स हैं। आप लोग अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इन सभी प्राकृतों में क्या डिफरेंस होता है इनके फीचर्स के अकॉर्डिंगली, वो बस यहाँ पे मैं आपको एक छोटे रूप में ही यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वे में ही यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जिससे आप लोग उसमें अंतर समझ पाए दोनों में। अगर भाषा सामने आए आपके तो वो एक डिफरेंस समझ में आपको आए। बाकी आप लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो श्वेतांबर आगम साहित्य है वो सभी अर्धमागधी प्राकृत में है, तो हमको एक वास्ट लिटरेचर हमको प्राप्त होता है, जिसमें अंग साहित्य है, अंग, उपांग, मूल सूत्र, छेद सूत्र, प्रकीर्णक, दो चोलिका सूत्र, इस तरीके से हमको मिलते हैं। तो कुछ ट्रेडिशन में 45 माने जाते हैं, कुछ ट्रेडिशन में 32 माने जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। 45 में और 32 ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा में जो है वो प्रकीर्णक माने जाते हैं। जो 10 प्रकीर्णक होते हैं वो ऐड हो जाते हैं इसमें, और जिसकी वजह से प्रकीर्णक क्या कहलाता है वो एक अलग टॉपिक है ना। किसी को पता है प्रकीर्णक क्या कहलाते हैं? तो प्रकीर्णक को भी जो 45 आगम्स मानते हैं वो प्रकीर्णक को भी आगम की कैटेगरी में रखते हैं, और जो 32 आगम्स मानते हैं वो प्रकीर्णकों को आगम की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, प्रकीर्णक होते हैं, बस ऐसा होता है। ठीक है, तो प्रकीर्णक एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी प्रकीर्णक के बारे में कोई जानता है? एनीवन नो अबाउट प्रकीर्णक, प्रकीर्णकास? हाँ या ना, अगर कोई भी बोल पाए तो। नो सर। ये अंग, उपांग, मूल सूत्र, छेद सूत्र, ये तो पता होंगे आपको। यस सर। ओके, प्रकीर्णक क्या कहलाते हैं? प्रकीर्णक देखो, प्रकीर्णक कहलाता है कि बिखरा हुआ। अगर इसको जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे ना तो उसको बोलते हैं बिखरा हुआ। बिखरा हुआ इन द सेंस, यहाँ आगमों के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट एक वर्ड के सेंस में यहाँ पे मैं उसका जनरल जो मीनिंग है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसमें क्या था कि जैसे भगवान महावीर की वाणी खिरी, और उसके बाद गौतम गणधर ने उसको उस वाणी को एक तरीके से कंपाइल किया, और बाद में ये हमें सूत्रों के रूप में आगे इसको क्लासिफाइड किया गया। तो ऐसे में जब हम पर्टिकुलर एक टॉपिक पे बात हो रही है, तो हम जब जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि प्राकृत की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपने शॉर्ट सेनी पे कुछ लिखा, आपने मागधी पे कुछ लिखा, आपने अर्ध मागधी पे कुछ लिखा, आपने किसी और पे लिखा, नेपाली पे लिखा। ठीक है, तो ये जो अलग अलग जो टॉपिक्स पे एक जो आपने वर्क किया है, तो इनको प्रकीर्णक कहते हैं। समझ लीजिए कि भगवान महावीर का समोसरण लगा था, तो वहां पे गौतम गणधर को तो एक तरीके से सब वो उसको ले रहे थे, लेकिन वहां पे और भी अन्य जो लोग विद्वान बैठे हुए थे, तो जो विषय उनके इंटरेस्ट का था या वो जिस विषय में एक्सपर्टाइज थे, उन्होंने उस विषय को ग्रहण किया और उस विषय के बारे में लिख दिया। ठीक है, तो ये इस तरह के हमने सब नहीं लिया, हमको जो विषय में इंटरेस्ट या मेरी जिसमें एक्सपर्टाइज थी, उन्होंने बोला तो सब कुछ, लेकिन वो हमने अपना चीज वहां से निकाल के हमने कुछ लिख दिया उसको एक तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रकीर्णकों की संख्या बहुत है, यहाँ पे 10 ही बताए गए हैं। मैंने एक आर्टिकल भी प्रकीर्णक पे मैंने लिखा है, इस पे रिसर्च करके, तो इस पे 30 प्रकीर्णक भी मिलते। वैसे बहुत सारे प्रकीर्णक हैं, लेकिन अगर हम बोलेंगे आगम की कैटेगरी में तो 10 बताए गए हैं। इसके अलावा 25, 30 और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकीर्णकों के नाम हमें मिलते हैं जो अभी अवेलेबल भी नहीं है। मैंने एक प्रकीर्णक पे वर्क किया था कोरोना के समय में,
तो मुझे मिला था वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो फिर मैंने उसके और भी कॉपीज, उसके ऐसा था मैन्यूस्क्रिप्ट थी एक्चुअली, तो वो इन प्रकीर्णक के कैटेगरी में यहाँ पे नहीं आता है, वो अलग है, वो अजीव कल्प उसको बोलता है, तो उस पर थोड़ा काम किया मैंने। तो इस तरह मुझे उसकी वजह से मुझे प्रकीर्णक के बारे में और जानने को मिला, तो मैंने सोचा आपको एक तरीके से शेयर कर दूं। तो ये हमारे बहुत वास्ट लिटरेचर है, आगम है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सो यहाँ पे जैसे मैंने अभी मागधी में आपको कुछ गाथास के एग्जाम्पल्स दिए थे, तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल है अर्धमागधी गाथा के। आप लोग इसको आपने पढ़ा भी होगा, ये बहुत फेमस गाथा है। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संजवो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस्य जम्मे सयामणो, है ना। और इसी धर्म यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, वो धर्म अहिंसा है, संयम और तप रूप है, जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये गाथा किसने पढ़ी है या सुनी है, ये वाली कोई जी बताएगा? सर। जी सर, ये वो 10 वैकालिक सूत्रों में है ना। दश वैकालिक में, बिल्कुल सबने सुनी है, सबने पढ़ी, सब जानते भी है, सब इससे बहुत अच्छे से पढ़ते भी होंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा भी एक मैंने कुछ, मेरे पास बहुत सारी थी और बहुत सारे आगम है, तो बहुत सारी गाथाएं, तो लेकिन इसमें से कुछ गाथाएं मैंने जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये एक गाथा है, इसके बारे में कौन जानता है? कहम चरे कहम चिट्ठे कहमा से कहम सहे, ये कौन जानता है? किसने पढ़ा है इसको पहले कभी? आपने पढ़ा? देविका जी ने। और जी सर पढ़ा। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सरल और बहुत ही गहरी ये गाथा है। तो इसमें एक्चुअली इस तरीके का है, जैसे हम लोग अक्सर, ये एक्चुअली बहुत ही रेलेवेंट है हम लोग आज के डेट में भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि हिंसा मत करो, अहिंसा को अपनाओ। तो और हमारे और हिंसा कहाँ कहाँ हो जाती है? हर चीज़ में हो जाती है। हम बोल रहे हैं तो हिंसा है, हम खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं तो हिंसा है, खा रहे हैं तो हिंसा हो रही है, मतलब सूक्ष्म जीवों की तो हिंसा हो ही रही है ना। तो उसमें ये दशवैकालिक ग्रंथ में ये प्रश्न एक तरीके से उन्होंने खुद ही उठाया कि कहम चरे कहम चिट्टे कहमा से कहम सहे कहम भुंजंतु भासंतो पावकम न बद्धई। मतलब वो कहते हैं कि भैया कैसे चलें, कैसे खड़े हों, कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे बोलें, जिससे पाप कर्म का बंध नहीं हो, क्या करें। मतलब देखो, जैनिज्म तो बहुत सूक्ष्म अहिंसा को भी फॉलो करता है एक तरीके से, है ना। हम अगर अपन की बात करें साधु भगवंतों की, तो और सूक्ष्म तरीके से करते हैं, हम भी ये करते हैं। हम तो भाव की भी बात करते हैं कि भाव यहाँ, ये तो फिजिकल हिंसा है, भाव हिंसा भी ना हो, है ना। तो ये आज का भी यही प्रश्न है। अगर हम यंगस्टर्स से बात करें तो वो भी ये कहेंगे भैया ये हर चीज़ में तो हिंसा हो रही है, चलने फिरने उठने बैठने, कैसे तो बच्चे कैसे कि हमारा पाप कर्म का बंध ही ना हो। तो देखो कितनी अच्छी यहाँ पे उन्होंने ही इसका सॉल्यूशन भी दिया। कुछ नहीं किया उन्होंने, कहम की जगह जयम जोड़ दिया। क्या बोला कि जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सहे जयम भुंजंतु भासंतो पावकम न बंधे। यानी उन्होंने कहम की जगह जयम जोड़ के इस बात का बहुत ही गहरा सरल जवाब दिया, सरल और गहरा। मतलब उन्होंने कहा कि कैसे की जगह बस क्या करना है, यत्न पूर्वक, है ना, यत्न, सावधानी पूर्वक, विद अवेयरनेस। आप अवेयरनेस के साथ चलो, अवेयरनेस के साथ खड़े हो, अवेयरनेस के साथ बैठो, अवेयरनेस के साथ सो, सावधानी पूर्वक खाओ, सावधानी पूर्वक बोलो। इससे पाप कर्म का बंधन नहीं करता जो ये इस प्रकार का प्रयोग करता है ना। तो देखो कितना अच्छा और गहरा यहाँ को उत्तर दिया। तो खैर ये तो खैर दूसरी बात है, विषय अलग है। तो लेकिन ये अर्धमागधी आगम जो दशवैकालिक है, उसमें ये इस प्रकार की एग्जाम्पल के वे में हमने यहाँ पे अर्धमागधी गाथाओं को यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अर्धमागधी लैंग्वेज।
introduction to Ardhmagdi language. Now, Shaurseni Prakrit. Shaurseni Prakrit को अभी आप लोग ग्रामेटिकली कितना इसको पढ़ रहे हैं अभी? किसी ने अभी इसको पढ़ा है? क्योंकि ये दिगंबर आगम साहित्य में इसका ज़्यादा प्रयोग हुआ है, शौरसेनी प्राकृत का. तो शौरसेनी प्राकृत was the popular spoken dialect and language of the ancient Shaursen Janapad, which correspond to the Mathura region and the entire Braj area surrounding it. जैसे मैंने बताया था already. So Shaurseni Prakrit evolved as the natural spoken language of the ancient Shaursen Janapad, जो सूरसेन प्रदेश बोला जाता है. So it's located around Mathura and the broader Braj region, and this area was a vibrant cultural and spiritual hub, and deeply आप लोग सब लोग जानते हैं it was deeply connected with Lord Krishna traditions and Jain teachings also. So hence Shaurseni reflects both the linguistic and cultural identity of the ब्रज पीपल. ओके, भगवान आप ब्रज के बारे में जानते हैं, मथुरा के बारे में जानते हैं, तो भगवान कृष्ण की लीलाएं वहाँ पे हुई हैं. भगवान कृष्ण के नाम से वो एरिया फेमस है ना. और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 22nd तीर्थंकरा हैं नेमिनाथ, वो भी कृष्ण भगवान के कज़न थे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन इनमें भी है. Okay, so the Shaursen Janapad was established by Shaursena, a Yadav ancestor, and the 22nd Tirthankara Lord Neminath. So the kingdom derived its name from the founder Shaursen, who belonged to the Yadav lineage, and the same clan that produced Lord Neminath, the 22nd Tirthankara of Jainism. And this genealogical connection links the political and spiritual history of region, showing how linguistic identity often developed alongside dynastic and religious heritage. तो ये जो वंश था, ये जो इस वंश के एक गौरवशाली जो एक ट्रेडिशन, एक परंपरा रही, वो केवल अगर हम बोलें कि वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रही है, बल्कि उसको हम कह सकते हैं कि धर्म और भाषा दोनों के ही डेवलपमेंट में इसने योगदान दिया है. ओके, नाउ एंशिएंट लिटरेचर रिकॉर्ड्स दैट दिस पावरफुल यादव किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ शौरीपुरा, एंड दिस lineage included illustrious kings like Samudragupta, Vasudev, and the 22nd Tirthankara Lord Neminatha, and the 9th Balabhadra, Balaram, and the 9th Narayana, Lord Krishna. Text record Shauripura as the capital city founded by King Shurasena, and his descendants included some of the most revered figures in Indian tradition, like Balarama, Krishna, and Neminath. Their influence strengthens the region's cultural prestige, and the local language Shaurseni flourished under their legacy. So these some of the and other points are also about Shaurseni. Their influential personality like Balram, Krishna, and Neminath, and unmatched valor brought great glory to the Shaursen Janapad, named after King Shursena, and constantly the vernacular spoken in this region become known as Shaursen. The fame and valor of this royal lineage gave the region its identity, and naturally the local dialect came to be called Shaursen, derived from the same root.
So this naming shows how language can serve as a marker of collective pride and regional unity. इससे हमें ये क्या पता चलता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि भाषा केवल हम जो एक संप्रेषण बोलते हैं उसका माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक हमारे एरिया माने क्षेत्र का गौरव और एक हमारी कल्चरल यूनिटी का भी एक सिंबल हो. वन ऑफ द स्कॉलर लक्ष्मीधर, author of Shadbhasha Chandrika, described Shorseni as the language born in the land of Shorsen is called Shorseni. उन्होंने ये बताया. तो Lakshmidhar's definition establishes the geographical origin of Shorseni clearly, and it shows that Prakrit languages often took their names from the regions where they naturally evolved, emphasizing the deep interconnection between geography and linguistics in ancient India. तो लक्ष्मीधर जो क्या बनते हैं, षडभाषा चंद्रिका के लेखक हैं. तो उन्होंने ऐसा इस तरीके का सूत्र है कि शूरसेन देशो जाता भाषा शौरसेनीति कथ्यते, इस तरीके से उन्हें लिखा हुआ है. तो इससे हमें इसका जोग्राफिकल उसका भी पता चलता है. सो दो दिस रीजन वाज द कल्चरल हार्ट ऑफ एंशिएंट Indian civilization and the primary center for the origin of Sanskrit dramas. Okay, so though born in the heartland, Shoursenis spread far beyond North India through trade, through cultural exchanges, and the Jain monastic movements. So this diffusion made it one of the most influential Middle Indo-Aryan languages. है ना, जैसे बोलते हैं ना कि शोरसेनी का जो मेन केंद्र क्या था, मध्य देश, मतलब हम बोलते हैं गंगा यमुना तहजीब जिसको कहा जाता है. तो पर लेकिन यहाँ पे क्या कहा कि इसका जो प्रोपोगेशन हुआ, प्रसार हुआ, तो पूर्व में क्या हुआ, वो पश्चिम में सौराष्ट्र, दक्षिण कर्नाटका, तमिलनाडु को हुआ. तो क्या कहा गया, जो हमारा व्यापार होता है, ट्रेड होता है, जो हमारा सांस्कृतिक जो आदान प्रदान होता है ना, और जैन साधु संघों का जो विहार होता है यहाँ से वहाँ, क्योंकि जैन साधु संघ एक जगह नहीं रहते, वो विहार करते रहते हैं. तो इससे उस भाषा का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और इवन तमिलनाडु में भी गया, साउथ में भी बहुत फैला पूरा का पूरा. क्योंकि अगर हम बात करें कि जितने भी, जैसे आचार्य कुंद की बात करें, वो साउथ के थे, है ना, और भी आचार्यों की बात करें वो भी साउथ के थे, लेकिन उनका साहित्य जो मिला हमको, जो जैन दिगंबर आगम साहित्य मिला, वो शौरसेनी भाषा, शौरसेनी प्राकृत, है ना. सो द मथुरा ब्रज रीजन्स वेयर शौरसेनी फ्लोरिस्ड was not only a linguistic hub but also the birthplace of Sanskrit drama. संस्कृत नाटकों की उसको जन्मभूमि माना जाता है. शौरसेनी की, देखो शौरसेनी को बहुत प्रयोग किया गया संस्कृत नाटकों में, जैसे मैंने अभी आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बताया. तो मोस्टली शौरसेनी जो लेडी रोल होते थे, महिला पात्र होती थी, वो शौरसेनी वो ही बोलते थे, है ना. जैसे अगर हम शकुंतला की बात करें तो वो शौरसेनी में बात करें. सो वाई बिकॉज द इमोशनल टोन एंड नेचुरल स्पीच ऑफ शौरसेनी सूटेड द ड्रामेटिक डायलॉग ऑफ अर्ली प्लेस. वो क्या है, जो उसकी सहजता है, जो उसका भाव है, इससे हमें उस जो ड्रामा के जो संवाद होते हैं, डायलॉग होते हैं, उसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट थे वो. तो इस वजह से इसको शौरसेनी को वो ड्रामाज का भी हिस्सा बनाया गया. ओके, नाउ द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ शौरसेनी प्राकृत. शौरसेनी Prakrit's origin and development took place in northern
India, but most of its literary production occurred in southern India. जैसे कि मैंने आपको already बताया. While its roots lay in the north, Jain monks carried Shaurseni to southern India also, where they composed numerous canonical and philosophical works. And this migration gave the language of pan-India character. जैसे आपने नाम सुना होगा आचार्य कुंदकुंद के समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय जो ग्रंथ हैं, अष्टपाहुड़, नियम सार, भक्ति संग्रह, ये जितने इनके वर्क्स हैं ये कौन से? शौरसेनी, जबकि ये साउथ के थे, है ना. साधुओं का, जैन आचार्य साधु दक्षिण में उनका प्रवास हुआ, है ना. और अधिकांश हम देखेंगे मोस्टली जितना भी दिगंबर कैनोनिकल लिटरेचर है वो साउथ में ही लिखा गया ज़्यादा, है ना. सो इट सर्व एज द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ दिगंबर जैन ट्रेडिशंस, कैनोनिकल एंड डॉक्ट्रिनल texts such as the Shatkhandagam and Kasai Paho. So for the Digambar sect, Shaurseni was the sacred medium of scriptures, Shaurseni part. And texts like Shatkhandagam and Kasai Paho stand as the earliest and most authoritative Jain writings in this practice. इसको षटखंडागम को पहला लिपिबद्ध मतलब लिखा गया आगम भी माना जाता है दिगंबर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसके पहले श्रुति परंपरा चल रही थी कंटिन्यूसली. तो जब ऐसा हुआ कि धीरे धीरे व्यक्ति मतलब मेमोरी जो हमारी वीक होने लगी, भूलने लगे लोग, तो चिंता हुई कि क्या करें जो हमें पूर्वों का ज्ञान है. तो आचार्य धरसेनाचार्य साउथ में हुए थे, तो उन्होंने धरसेनाचार्य को पूर्वों का ज्ञान था. तो उनको जब उनको लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट है, अब मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, तो उन्होंने फिर दूसरे संघ से, आचार्य संघ से, दो बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुनियों को भेजने के लिए उनको कहा कि ऐसे को भेजो जिसको मैं अपना ज्ञान दे सकूं. एक छोटी सी इसके पीछे की षटखंडागम की है, तो वो मैं जिसको बता सकता. तो वो जब आए इनके पास तो उन्होंने इसकी परीक्षा ली कई तरीके से कि ये उसके एलिजिबल हैं कि नहीं जो मैं ज्ञान देना चाहता हूँ. तो जब उनकी परीक्षा ली, वो एक अलग कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग कहीं पढ़िएगा उसको. तो जब उसमें पास हो गए तो फिर उन्होंने उनको पूर्वों का ज्ञान दिया तो अपने पास रख के. और देन वो जो मुनि आए थे उनका नाम था आचार्य पुष्पदंत और भूतबली, दो मुनि थे. और उनके द्वारा षटखंडागम ग्रंथ जो है फर्स्ट सेंचुरी में पहला ग्रंथ जो लिपिबद्ध रूप में लिख के उन्होंने इसको तैयार किया. और आज भी हम शुद्ध पंचमी महापर्व जो मनाते हैं वो उसी के लिए मनाते हैं कि इस दिन एक प्रथम लिपिबद्ध ग्रंथ के रूप में हमें ये प्राप्त हुआ था. इस दिन ये कंप्लीट होके हमारे सामने आया था. तो षटखंडागम ग्रंथ ये एक है. और ये भी है कि आपको जो रमोकार महामंत्र जो है, वैसे तो वो क्या है, अनादि निधन मंत्र है, ठीक है ना. उसको किसी ने बनाया ना कुछ किया, वो शुरू से है ही. लेकिन फिर भी इसके कहाँ कहाँ उल्लेख मिलते हैं आपको पता है किसी को? रमोकार महामंत्र कहाँ सबसे पहले अगर देखें तो इसके एविडेंस कहाँ मिलते हैं? ये तो अनादि निधन मंत्र माना जाता है, मैंने किसी ने लिखा नहीं है इसको, कि बनाया नहीं है, बट किसको पता है ये रमोकार महामंत्र के बारे में? इसका रेफरेंस कहाँ से मिला, कैसे, कहाँ, तो बताएगा. मतलब आप लोगों को कुछ पता हो नया तो मुझे भी पता चलेगा. ऐसा किसी को पता है? हाँ ना तो बोल दीजिए. नहीं सर, No, वो sir. तो नहीं मालूम, नहीं. हाँ देखिए, पहला जो अगर हम इंस्क्रिप्शनल एविडेंस देखें रमोकार महामंत्र का, तो इंस्क्रिप्शनल महामंत्र के रूप, इंस्क्रिप्शनल रेफरेंस के रूप में ये मिलता है हमको उड़ीसा
भुवनेश्वर, उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है, वहाँ हाथी गुम्फा शिलालेख बहुत फेमस है। आप लोगों ने सुना भी होगा, आप गूगल भी कर लेना। तो हाथी गुम्फा शिलालेख है, और उसमें उसमें वहीं पर हमको एक सबसे पहला इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिलता है। तो वहाँ पे नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, इस तरीके के 2 इस प्रकार के वहाँ प्रयोग किए गए हैं। तो 17 लाइन का है, और उसी ये तो शुरुआत यहाँ से हुई है। वो खारवेल का शिलालेख कहलाता है, क्योंकि किंग खारवेल जो था, ही वॉज जैन किंग, और बहुत ही प्रॉस्परस किंग था। उसका एक कलिंग, जिसको बोला कलिंग जिन में ऐसा बोला जाता। तो इस तरह, और उसकी 10वीं लाइन में, और एक और जो ये जो खारवेल का जो शिलालेख है, उसका सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शनल जो एविडेंस है कि हमारा जो देश है भारतवर्ष, उसका नाम भी वहीं से ही प्राप्त हुआ। इंस्क्रिप्शनल एविडेंस के रूप में उसी को कंसीडर किया गया है, क्योंकि उसकी 10वीं लाइन में ये आया है कि भरदवस, जो कि ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत लैंग्वेज में है। ठीक है, पहला तो मैं क्यों कंटेक्स्ट आया, मैं क्योंकि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा होगा इसलिए बताया। मैं पहले आपको इंस्क्रिप्शनल बता दिया, बट टेक्सचुअल अगर बात करें तो रमोकार महामंत्र जो है वो षटखंडागम ग्रंथ में मेंशन किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसमें लिखा गया है बना के, ये तो अनादि निधन मंत्र है, वो तो शुरू से ही है, ना किसी ने बनाया ना कुछ। लेकिन उसमें इसको सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में, है ना, यूज किया गया है इस ग्रंथ के पहले। षटखंडागम हमें मिलता है। तो इस तरह ये बात इस कंटेक्स्ट में ये इंस्क्रिप्शनल वाली बात भी आई। एंड सेकंड वन इज कषाय पाहुड़। कषाय पाहुड़ इज रिटन बाय आचार्य गुणधर, and it stands as the earliest and most authoritative Jain writings in this practice. Okay. So esteemed Jain Acharya like Kundakunda, Acharya Vattakir, Acharya Shivari, Acharya Tivishrab, Koshar Pushpadant Bhutbali, Nimi Chandra Siddhant Chakravarti, Kartikeya, Vasunandi, among others, authors many works in Shorsini Prakrit. Okay. Some prolific Jain acharyas who wrote in Shorsini greatly expanded its literary corpus, and their philosophical clarity and linguistic discipline have preserved Shorsini Prakrit as a medium of refined spiritual expression. So the slight dialectical variations seen in Jain Shorsini arouse from religious and regional influences. So some ancient Jain texts in Shorsini have particular linguistic features, leading some scholars to term it Jain Shorsini. Shorsini को Jain Shorsini भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बहुत वास्ट लिटरेचर है, और ये जितना भी लिटरेचर है ये आचार्य प्रणीत है। आचार्य प्रथम मैंने आचार्यों ने लिखा है। जैसे हम अंग आगम की बात करें तो क्या कहते हैं कि इसको किसी ने लिखा नहीं है, ठीक है, ये कंपाइल्ड है, जो गणधर ने कंपाइल्ड किया था उसी का बाद में इसको क्लासिफाइड किया गया। तो उसके कोई लेखक नहीं है, कोई ऑथर नहीं है, बट जितना भी जैन आगम साहित्य है, जैन आगम लिटरेचर है, वो आचार्य प्रणीत है, सभी के सभी आचार्यों ने ही लिखा है। सो द स्लाइट डायलेक्टिकल वेरिएशन सीन इन जैन शोरसेनी अराउज फ्रॉम रिलीजियस एंड रीजनल influences, and yet linguistically it remains the same Shorseni, showing remarkable internal consistency. यानी हम कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो अगर प्राचीन जैन ग्रंथों में जो शौरसेनी एक का जो विशिष्ट भाषा एक रूप पाया जाता है, जिन्हें कुछ विद्वान उसको जैन शौरसेनी भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में हम कहें तो उस शौरसेनी का ही वो रूप है, कोई अलग कुछ नहीं है वो। इस तरह से यहाँ पे ये इस बात को स्पष्ट किया गया। ओके, so this was the historical and cultural significance of शौरसेनी प्राकृत। एंड लिंग्विस्टिक हम इसको करेंगे, लिंग्विस्टिक यूजेस इन ड्रामा एंड लिटरेचर, जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
So in ancient theater, languages reflected social class and gender. So Sorseni was chosen for its grace and natural tone, and suitable for women and cultured characters. मैंने आपको बताया कि जो भी भरत मुनि का अगर नाट्य शास्त्र की बात करें, है ना, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ऐसा बताया गया है, निर्देश दिया गया है कि नाटकों में जो भी संवाद होते हैं, जो भी डायलॉग होते हैं, उसके लिए शौर सेनी का प्रयोग किया जाए। किसके लिए? जो लेडी कैरेक्टर्स हैं, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, या सेवक हैं, या वो जो लेडी कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर ऐसे समझ लो, ये शकुंतला, तो उसकी जो फ्रेंड्स हैं, सखियां हैं, है ना, या फिर मिडिल क्लास जो रोल्स जो उसमें रोल्स दिए गए मिडिल क्लास के लोग, उनके लिए। तो इस वजह से तो मोस्ट ड्रामेटिक प्रोज, स्पेशली dialogues, were written in short Seni rather than Sanskrit to sound natural and relatable, and its rhythms suited spoken delivery on stage. मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले जो नाटक होते थे वो बहुत रियलिस्टिक हम बोल सकते हैं उसको। पहले जैसे मैंने बोला, हिंदी की हिंदी में, इंग्लिश के इंग्लिश में होते हैं आज की डेट में, गुजराती गुजराती होते हैं, लेकिन वो एक ऐसा तब ऐसे होते थे कि संस्कृत वर्ग का जो रोल निभा रहा है वो एलिट वर्ग का, तो संस्कृत बोलेगा, बाकी प्राकृत बोलेंगे, बाकी उसमें भी ये शौर सेनी बोलेगा, ये दूसरा बोलेगा, ये इस तरीके का बोलेगा। तो ये एक तरीके से प्लेस को भी बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इस तरीके के बताया गया, तो उसके निर्देश दिए गए। तो क्लासिकल संस्कृत प्लेस लाइक प्ले राइट्स लाइक Ashwagosha, Bhasa, Shudrak, Kalidas, and Vishagdatta wrote their Prakrit prose parts mostly in Shaur singing. So Ashwagosha Shaur Seni is the oldest form of post-classical Sanskrit dramas. Shaur Seni, along with Prakrit form seen in Pali and Ashokan inscriptions. So Ashwagosha's work preserved the earliest phase of Shaur Seni, showing continuity from the linguistic forms found in inscriptions and Buddhist and Pali text. So it bridges the early Prakrit and later literary forms. दोनों, मतलब इसने क्या किया कि जो आरंभिक जो अर्ली प्राकृत के जितने भी साहित्यिक प्राकृत के बीच एक ब्रिज का इसने काम। स्कॉलर्स कंसिडर्ड Shaur Seni used by Ashwagosha as closer to Sanskrit than the Shaur Seni found in later classical dramas, suggesting the use of Shaur Seni and other Prakrit began while many plays Prakrit speakers still understood Sanskrit. So this linguistic closeness shows that Prakrit and Sanskrit were once mutually intelligible, and the transition was gradual, not abrupt, and Shaur Seni thus represent as evolutionary phase of Indo-Aryan speech. यानी वो क्या कह रहे थे कि उस काल में प्राकृत और संस्कृत दोनों एक दूसरे को समझने योग्य थे, एक दूसरे को समझते थे। तो शौर सेनी इस एक तरीके से विकास क्रम का एक बीच का एक हम बोल सकते हैं एक पॉइंट रहा है। इसको हम इस तरीके से देख सकते। वररुचि's प्राकृत प्रकाश accepts संस्कृत as the foundational language for Shaur Seni, ऐसा भी कहा जाता है। तो वररुचि viewed Shaur Seni as derived from Sanskrit, sharing its grammatical skeleton but differing in pronunciation and vocabulary. So this idea affirms Shaur Seni's status as a Middle Indo-Aryan descendant of classical Sanskrit. ये ऐसा कहा जाता है, उनका ये अपना व्यू है, बट ऐसा नहीं है कि संस्कृत से प्राकृत आई है ना, संस्कृत को शौर सेनी की मूल भाषा ऐसा अगर बोले तो बाद में बहुत इस पे रिसर्च हुई है, लेकिन उसके बाद ये रहा है कि प्राकृत का अपना एक अलग स्वरूप है। वो किसी छांदस हम बोल सकते, छांदस मैंने आपको इंट्रोडक्टरी में भी बोला था,
ये छांदस जो रही, उस छांदस से ही संस्कृत और प्राकृत दोनों का एक तरीके से विकास है। ये संस्कृत से ये क्योंकि मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इस तरीके की चीजें हैं भी चलती है, तो वो भी पता होनी चाहिए, जिससे हमें इसको पता रहे। Okay. So despite its heavy use of desolations, Shortseni in classical Sanskrit dramas was more accessible than Sanskrit and was easily understood by speakers. So the evolving vernacular of Apabhransha. So Shortseni maintained grammatical discipline yet remained close to everyday speech, and it served as a bridge between Sanskrit and later Apabhransh languages, ensuring continuity in India's linguistic heritage. Okay. So जैसे अपभ्रंश की बात आई अभी यहाँ पे, तो अपभ्रंश जैसे आज की अगर हिंदी भी बात करें तो हम अक्सर कहते हैं या चलता रहता है कि जो आज की जो हिंदी है वो कहाँ से आई, संस्कृत लैंग्वेज से आई। लेकिन ये एक जस्ट एक आग्रह है अपना उनका, लेकिन ये है कि अगर लिंग्विस्टिकली देखा जाए तो कोई भी लिंग्विस्टिक ये नहीं कहेगा कि हिंदी संस्कृत से आई है, क्योंकि प्राकृत से अपभ्रंश हुआ और अपभ्रंश से हिंदी आई। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट हुआ है, ना कि वो संस्कृत से आई। ठीक है, so Shortseni Prakrit was not merely a dialect, was the linguistic soul of ancient northern India, and which nurturing Jain philosophy, Sanskrit drama, and the evolving vernaculars that later shaped regional languages. So this is about the linguistic uses in drama and literature of Shortseni Prakrit language. So these are some linguistic features of Shortseni, like Magdi and Ardhamagdi. तो इसमें हम ये बात करेंगे कि जब सेंटेंस होता है तो अनादि में विद्यमान त का द और थ का ध होता है। ठीक है, जैसे आप सूत्र भी हेमचंद व्याकरण में सूत्र तो उदह है ना, ऐसे हमने सूत्र भी बहुत सारे पढ़े हैं, क ग च ज त द प य वाम प्रायर लोग है ना, और ख ग थ द भाम है ना, आपने सूत्र भी पढ़े होंगे हेमचंद्र व्याकरण के। तो उस तरह से, और यहाँ पे संयुक्त होने से तू को द नहीं होता, और साथ ही रहने पर ही त का द नहीं होता। जैसे अगर इसमें हम एग्जाम्पल लें तो आगतः, तो आगतः तो त का द हो गया, यानी आगदो। नाथः, नाथ मतलब न का ण हो जाएगा, शॉर्टसेनी में न का ण हो जाता है। ठीक है, तो णा और थ का ध हो जाएगा, जैसे बोला था, तो ना धो, णा हो भी हो जाएगा, ख ग थ द भाम प्राय लो, उससे भी है ना। फिर कथम का कधम या कहम भी रूप बनता है। आर्यपुत्र, यानी आर्य यानी यहाँ पे अज, जब इस प्रकार का लग जाता है तो वहां पे इसको संयुक्त हो जाता है, अज उत्तो। ठीक है, तस्य का तस् हो जाएगा, तथा का तथा एज इट इज रहेगा, है ना। और जब ये रिय, ये जब इसके स्थान पर जो विकल्प में संयुक्त मतलब य आदेश होता है ना, और विकल्पा भाव में जम आदेश होता है। जैसे हम अगर बोले आर्यपुत्र तो उसको बोलेंगे अय्य उत्तो, या उसका अज उत्तो भी बनेगा, है ना। पर्याकुलः, इसका क्या बनेगा, पय्या उलो, या इसको पज्जा उलो भी बनता है। क्ष के स्थान पर ख होता है, आधा क और ख होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। जैसे हम बोलेंगे इक्षुहु तो बोलेंगे इक्खु। चक्षुहु यानी चक्षु, इसका चक्षु बन जाएगा। तो ये कुछ जब हम इन सबको देखते हैं, इस सबको जानते हैं, तो हमें वेरिएशंस पता चलते हैं, और इससे हम ये समझ, जब हमने जैसे मागधी की बात की, अर्ध मागधी की बात की, और शॉर्टसेनी के भी जो स्पेशल फीचर्स हम यहाँ पे लिंग्विस्टिक बता रहे हैं, तो इसको जब हम पढ़ते हैं कहीं तो हमें पता लग जाता है कि ये
हम ऐसे तो चलो जान रहे हैं कि ये जो आगम है ये अर्धमागधी में है, ये शौर सेनी है, लेकिन कहीं आपको कॉमन प्राकृत पढ़ने को मिल जाए तो फिर आप कैसे पहचानोगे कि वो अर्धमागधी है कि शौर सेनी है कि क्या है, तो या महाराष्ट्री है। तो इसको अगर ये जो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, अगर इसको हमें ध्यान है हमको, तो हम उसको बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। ठीक है। ओके, सो सम लिंग्विस्टिक और भी हैं इसमें, मैंने इसमें बहुत डाले। जैसे शौर सेनी के सिद्धांत ग्रंथों में जैसे मैंने बताया न के स्थान पर ण प्रवृत्ति देखी जाती, तो न नमो का नमो हो जाता है, नाम का नाम हो जाता है, आलपन का आला आलवण हो जाता है, ज्ञानी का नानी हो जाता है। एक सूत्र आता है ख ग थ द भाम, तो उसको लिखा ख ग थ द फ भ को ह हो जाता है। एक सूत्र आता है ख ग थ द भाम, तो उसमें मुखम का मुहम, मेघा मेहो ना, घ का भी ह हो जाएगा, मेधा का मेहा, फुल्ल का फुल्ल, लाभ का लाहो, है ना। तो कर्ता कारक प्रथमा के एक वचन में ओ प्रत्यय के अतिरिक्त ए प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इंदियो, इंदिये, है ना, काओ का काए, जोगो का जोगे, और नक शब्दों के संबोधन के एक वचन में विकल्प से नकार को अकार हो जाता है। जैसे हमने बोला सुखिन, है ना, तो न का क्या हो जाएगा, अकार हो जाएगा नकार का, सुखी आ, नकार का आकार हो जाता है, सुखी आ। कंचुकिन, तो यहाँ बोलेंगे कंच या, है ना, तो नकार का ये आकार हो गया। इसी तरह से सर हाँ बोलिए। सर जोगो का य नहीं होगा, ज का य नहीं होगा? कहाँ पे? जोगो, जोगो प्रीवियस स्लाइड, हाँ ये है जोगो, हाँ, तो जोगो का य नहीं होगा, ज का य नहीं होगा? वो यहाँ पर नहीं है, वो तो उसमें होगा ना, ज का या मागधी में बताया जो मगध में इस प्रकार का प्रयोग, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं य का ज का य और य का ज हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे कार्य, तो आप जैसे बिहार वगैरह में जाओगे ना, तो वहां पे कार्य बोलेंगे, ज का हम बोलेंगे कार्य किए कि कार्य करना है, तो बोलेंगे कार्य करना। अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि अभी नहीं बोलते, वहां पे अभी भी ऐसा चलता है। तो अच्छा। मागधी का वहां पे थोड़ा सा, वहां पे मागधी होगी, बिहार है तो मागधी का ही वहां पे प्रभाव रहता है। ठीक है। जी सर, जी हाँ, सर। ओके। तो यहाँ पर इह और ह्य आदेश के स्थान पर विकल्प से ध होता है। ऐसे इह तो ईध, इह, ईध और इह दोनों बनेगा, क्योंकि प्राकृत एक ऐसा है जो वहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत रिजिड नहीं है, उसके कई सारे रूप बनते हैं। आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है ना। परित्रायध्व का बनेगा परितायध, और परितायह दोनों बनता है। भू धातु के भकार को विकल्प से हकार आदेश होता है। जैसे भवती को क्या बोलेंगे, होदी। जैसे आप लोग प्राकृत पढ़ रहे हो यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोग प्राकृत के ग्रंथ भी पढ़ोगे ना, तो क्या होगा आपका, उसमें और भी एक्सपर्टाइज हो सकता है, क्योंकि गाथाओं के माध्यम, गाथा में इस तरीके के प्रयोग जब मिलते हैं ना, तो हमको समझ में आता है कि हाँ यहाँ से देखो किस प्रकार का प्रयोग किया गया। अभी तो आप ग्रामर सीख रहे हो, लेकिन ग्रामर का प्रयोग गाथाओं में या हम गद्य में या पद में किस प्रकार से करेंगे, उससे और भी एक तरीके से हमको एक व्यू मिलता है। ठीक है। तो होदी का भोदी भी बनता है। स्त्री शब्द के स्थान पर क्या करते हैं, इत्थि, इव को विय, एव को जेव, और आश्चर्य को आश्चर्यम, ऐसा आदेश होता है। पूर्व के स्थान पर विकल्प से पूर्व, इदानीम को दानी, तस्मात को ता आदेश होता है। और गृद्ध जैसे शब्दों के रिकार के स्थान पर, जैसे गृद्ध आया तो री आया ना, तो रिकार के स्थान पर इकार होता है, ऐसे गृद्ध, तो बोलेंगे ग्री के मतलब गी कर देंगे, वो सिंपल सा था, गिद्धो, इस तरीके से इसमें आता है। ठीक है। और भी कुछ है, तो ब्राह्मण्य, विज्ञ, यज्ञ और कन्या शब्दों में क्रमशः ण्य, ज्ञ
और न्य के स्थान पर क्या जाता है, विकल्प से अ आदेश होता है। जैसे ब्राह्मण्य तो बमहंजो, ब्रह्मणो भी बनेगा। विज्ञ तो इंजो और विर्णो भी बनेगा। यज्ञ तो यंजो और जर्णो भी बनेगा। कन्या तो कर्णा भी बनेगा, कंजो भी बनेगा। तो इसी तरह कृत्वा प्रत्यय को विकल्प से ईय और दूण आदेश होता है। जैसे भूत्वा तो उसको भवीय, भोदूण, भोत्ता ऐसा। और पठित्वा तो पढ़ीय, पढ़िदूण, पढ़ित्ता, इस तरीके से। और पूर्वोक्त आदेशों के साथ ही विकल्प में अडुअ आदेश भी होता है। जैसे कृत्वा का कहेंगे कड़ुअ, करीय, करीदूण। गत्वा का गड़ुअ, गच्छीय, गच्छीदूण। तो इस प्रकार से ये जानने से, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब थोड़ा सा बस अपने जहन में रखना है कि अच्छा ये कुछ कुछ फीचर्स हमें मेन जो फीचर्स है ये ध्यान में रखना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा आपको बता दिया, लेकिन हाँ, जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी पता ही होंगी। तो ये कुछ कुछ मेन फीचर्स होते हैं जिससे हम प्राकृतों में भी अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ श्वर्सेनी थे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जैन आगम्स, जैन दिगंबर ट्रेडिशन के जो आगम है वो श्वर्सेनी भाषा में, तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको मेंशन किए हैं। जैसे आचार्य पुष्पदंत और भूतबली द्वारा रचित षट खंड आगम, इसके बारे में मैंने बताया आपको। आचार्य गुणधर द्वारा रचित कसाय पाहुड़, जिसे हम कसाय प्राभृत भी कहते हैं संस्कृत में, तो ये भी बताया। इसके अलावा तिलोय प्रणति आचार्य यतिवृषभ का है, जिसमें कॉस्मोलॉजी और मैथमेटिक्स से रिलेट करता है ये पूरा का पूरा ये ग्रंथ श्वर्सेनी प्राकृत भाषा का। इसके अलावा आचार्य वट्टकेर का जो है फिर मूलाचार, जो आपको कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एस्थेटिक्स के बारे में बताता है। और आचार्य शिवार्य भगवती आराधना, इसमें भगवती आराधना में समाधि मरण और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स आते हैं। और आचार्य कुंद का मैंने बताया आपको, समय सार, पंचास्तिका है, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पारस अणुवेक्षा, भक्ति संग्रह, ये सारे ग्रंथ हैं जो कि अभी उपलब्ध हैं। वैसे आचार्य कुंद के 84 पाहुड़ 84 ग्रंथ माने जाते हैं जो कि अब अवेलेबल नहीं है। इनमें से कुछ ही हमें जो यहाँ मैंने लिखे हैं वही अवेलेबल है। और ये भी अपने आप में बहुत वास्ट है, अगर एक भी पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात होगी। और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कृत गोमट सार, त्रिलोक सार, लब्धि सार, छपण सार, ये ग्रंथ है। और इसके अलावा आचार्य देवसेन प्रणीत दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार, आचार्य श्रुत मुनि प्रणीत परमागमो सारो, भाव त्रिभंगी, आश्रव त्रिभंगी, आचार्य वसुनंदी कृत वसुनंदी श्रावकाचार्य, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ले पर्सन हाउस होल्डर्स के हिसाब से लिखा गया है। टच विहारो सारो, आचार्य कार्तिकेय प्रणीत कार्तिकेय प्रेक्षा। और इसके अलावा मुनि नेमी चंद्रकृत द्रव्य संग्रह, जो कि जैन मेटाफिजिक्स पर पूरा का पूरा है। आचार्य शिव शर्मा प्रणीत कम्म पयड़ी, शतक चूर्णी इत्यादि, ये जितने भी ग्रंथ हैं श्वर्सेनी प्राकृत भाषा के आगम ग्रंथ माने जाते हैं। और बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। और इसको तो ये बताने का मतलब ये है कि हमारा, अगर हम श्वेतांबर जैन टेक्स्ट, दिगंबर जैन टेक्स्ट दोनों को अगर मिलाएं तो इतना प्रॉस्परस, इतना वास्ट है। ये हमारे एक तरीके से हमारी रिचनेस है हमारे ट्रेडिशन की और नॉलेज ट्रेडिशन की। इवन जैन ट्रेडिशन नहीं, ये पूरे इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की रिचनेस है। और सो सम एग्जाम्पल्स, जैसे कि सभी जगह एग्जाम्पल दे रहे तो यहाँ पर भी करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ श्वर्सेनी गाथा, तो यहाँ पे एक ये प्रवचन सार ग्रंथ है आचार्य कुंद का, उसकी कुछ यहाँ पे मैंने गाथा यहाँ पे मेंशन की है कि एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोध घाई कम्मलम पड़मामि वड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य तत्तारम। यानी वो कहते हैं, देखो एस सुरासुर मतलब ये कहते हैं कि मंगलाचरण है आज प्रवचन सार का,
इसमें पंच परमेष्ठी को 5 गाथाएं हैं, मैंने 3 ही यहाँ यूज की है। पंच परमेष्ठी को नमन किया गया है। तो इसमें पहले कौन है अपने परमेष्ठी? अरहंत देव। तो इसमें क्या बोलते हैं कि ये जो सुरेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्रों से जो वंदित हैं, है ना, जो उनके द्वारा पूजे जाते हैं, जिन्होंने घाती कर्म मल को धो डाला है ना। कर्म जब आप पढ़ते हैं तो 8 प्रकार के कर्मों में 4 घाती होते हैं और 4 अघाती कर्म होते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने घाती कर्म मल को धो डाला है, ऐसे तीर्थ रूप और धर्म के कर्ता भी श्री वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। क्योंकि ये आचार्य कुंद का ग्रंथ है प्रवचन सार, तो वो अपनी ओर से इसको मंगलाचरण के रूप में कर रहे हैं। से पुण्य तिथ्यरे सब सिद्धे सब भावे समणे अणान दंसन चरित वीर्यायारे ते सवे संगम संगम पत्ते गमे पत्ते गमन्नामी वट्टन्ते अरहंते मानुसे खेते। इसी तरह और भी है, किच्चार हंताड़म सिद्धाड़म तहड़मो गढ़ाड़म अच्छावे वग्गाड़म साउड़म चेव सदेसिम ते सिम विशुद्धं शरणाण पहाड़ा समम सदा से जेव संपयामि समम जत्तोड़े बाण संपत्ति। तो इस तरह वो याद है क्योंकि मुझे, इसलिए मैंने वो भी बोल दी। तो इस तरह ये शौर सेनी गाथा के कुछ उदाहरण यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो इस तरह हमने आज मागधी, अर्धमागधी और शौर सेनी भाषा के कई डायमेंशंस को यहाँ पे जाना, समझा और उसको उदाहरण के एग्जाम्पल्स के थ्रू भी जाना, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, कल्चरल सिग्निफिकेंस के भी बारे में भी जाना, है ना, हिस्टोरिकल इसके बारे में भी जाना, लिंग्विस्टिक्स के भी बारे में जाना। एक तरीके से हमने यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, या हम उसको कहें तो इस तरह ये मागधी, अर्धमागधी और शौर सेनी का इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चंस हैं आपके, या आपको कुछ इसमें ध्यान में आया? बताइए। जी, माधुरी जी, टीना जी, देविका जी, भावे जी और भावे जी, सिंह राजा जी, नो डाउट। ओके, तो आपको एक इंट्रोडक्टरी, आपको सब समझ में आया, सबका एक डिफरेंस भी समझ में आए, और सबका एक अपनी अपनी एक हिस्ट्री है, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में भी हमारी बात हुई। तो कोई क्वेश्चंस हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हो गया है समय ऑलरेडी। आप बोल सकते हैं। माधुरी जी तो चलो ठीक है, नो डाउट। भावेश जी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नहीं, तो ये थोड़ा नया है, इसको थोड़ा अच्छा। डाइजेस्ट करना पड़ेगा। Okay, बिकॉज आई yeah. थिंक हम लोग महाराष्ट्री प्राकृत सीख रहे हैं ना। हाँ वी आर लर्निंग महाराष्ट्री प्राकृत। हाँ, that is individual topic of Maharashtra Prakrit, but there is a one topic in your syllabus, introduction to Ardha Magdi, Magdi and Shaur Seni. हाँ, तो आप ये भी जानेंगे तो उससे कनेक्ट कर पाएंगे आप। तो इसीलिए मागधी का इसलिए यहाँ पे महाराष्ट्री नहीं रखा गया, नहीं तो महाराष्ट्री भी ले लेता मैं, क्योंकि उसको इंडिविजुअली ऋषा मैडम शायद पढ़ा रहे हैं महाराष्ट्री को, इसीलिए। एक्चुअली आपने अर्धमागधी के लिए आगे एक पॉइंट बताया था कि क बिकम्स ग। तो मैं वही सोच रहा था, जो लोक, जो वर्ड है लोक, हाँ, वो अर्धमागधी में लोक बन जाएगा, बराबर। लोकस्स हाँ, जो बोलते हैं उसी के हाँ, लिए हाँ, वो लोकस्स है। जी जी मैं जी काफी जी टाइम से सोच रहा था कि वो जी लोकस्स क्यों है। जी। तो आपने अभी जो भी बताया, हाँ,
बिल्कुल अभी भी आप हम लोग अभी कनेक्ट नहीं कर पाते, बट हम आज भी बहुत सारे जो यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में शब्द यूज करते हैं, वो कई कई ऐसे वर्ड हैं हमको हमें वो हिंदी लगते हैं लेकिन वो प्राकृत होते हैं actually, है ना। जैसे हम ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैं बता सकता हूँ, जैसे एक अभी रस्सी है, रस्सी हम लोग बोलते हैं ना, रस्सी जो होती है वो भी प्राकृत वर्ड है, रस्सी, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन हम उसको एज ए हिंदी, क्योंकि हिंदी जो आई है वो कहाँ से आई है, वो प्राकृत लैंग्वेज से आई है। प्राकृत होते होते अपभ्रंश से हिंदी आई, तो उसका प्राकृत का बहुत प्रभाव है हिंदी पे। और जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन सभी पे प्राकृत का ही प्रभाव है। चाहे आप मराठी ले लीजिए, आप महाराष्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप जानते ही हैं मराठी, मरहट्ठी बोलते हैं इसको, पहले बोलते थे, है ना। चाहे आप गुजराती ले लो, चाहे बंगाली ले लो, चाहे जितनी भी रीजनल इंडियन लैंग्वेज है, उस सबका जो डेवलपमेंट हुआ है कहीं ना वो प्राकृत लैंग्वेज के थ्रू ही हुआ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि प्राकृत इज द मदर ऑफ वेरियस इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस। ओके, तो होप आपको समझ आया होगा। आज काफी कुछ उसको लेकर था, Yes. तो थैंक यू सो मच। दोबारा आप सभी लोग मिले। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू, you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. ओके। Thank you, तो sir. फिर कंप्लीट करें क्लास। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। Okay, thank you, sir. Yes. Stop it. Thank you.